Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Good afternoon. Yes, ma'am. Okay, thank you, Rukmini. Strength is very less. बहुत सारे लोगों ने एटलीस्ट देखा ही नहीं होगा. So basically, what is the need of file handling or file concept? Yes, anyone? जितने भी लोग हैं उन्होंने मॉर्निंग में लेक्चर अगर अटेंड किया है तो पता होगा फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट क्यों यूज किया जाता है और फाइल ऑपरेशंस क्यों क्यों किए जाते हैं. To store data permanently. Okay. Using file concept, we can store our data permanently. For that concept, we are using this one. तो इसमें IO stream library देखी है हमने. Input output stream library. This is standard library, and this library is made up of two types. That is input stream and for output stream. I stream and O stream. Again, there are some input output objects are there. C in and C out are basically the objects. मैं एक प्रोग्राम भी लेने वाली हूँ, फिर भी थोड़ा सा थियरी ले रही हूँ जो मॉर्निंग में हुआ है. So these are the objects. C in जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, that is also object. This C out is object. C then C log. These are the objects of input and output. Standard input output objects. These objects belongs to particular class. ऑब्जेक्ट का कोई क्लास होता है. ओके तो ये डायग्राम भी हो चुका था. So each stream, off stream and f stream, these files or these classes basically used for file handling concept. Just a minute. Fstream library provides C++ programmers with three classes for working with files. These classes include offstream, ifstream, and fstream. So this is fstream. उसके तीन types है: offstream, ifstream, and fstream. This class represent an output stream. So this OF stream is for creating and writing information to file. Create a file, to write information in file, we use offstream. If we want to read that file, अभी जो मैं ये बोल रही हूँ ये आपको प्रोग्राम में समझ में आएगा. मुझे अगर वो फाइल रीड करना है तो मैं if stream यूज करूंगी. And if I want to perform both operation, read, write, then I use f stream. These are the stream classes: IO stream, I stream, and O stream. These are the standard input output classes. Standard input output classes. और ये क्या है? If stream, F stream, and off stream. These are the classes used for file.
तो इसमें डिफरेंस क्या है? आई स्ट्रीम में सिर्फ सी इन होगा, ओ स्ट्रीम में सिर्फ सी आउट होगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है whatever the features or properties of this class accessed by this if stream class। तो ये इसका बेस क्लास है IF stream का, and O stream is a base class of off stream class। तो यही डायग्राम है, इसमें जो दो पार्टीशंस किए गए हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्टीशन एंड दिस इज द सेकेंड पार्टीशन। तो फर्स्ट पार्टीशन जो है उसमें आता है I stream, O stream, that is IO stream, these are the standard library function, and IF stream, OF stream and F stream, these are for file purpose, file handling purpose। Okay, so I will directly show you the program। तो मॉर्निंग में ये जो प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया था वो कंपाइल नहीं हो रहा था, बहुत ही सिली मिस्टेक था। इंट मेन के आगे मैंने फंक्शन दिया नहीं था। ओके, इंट मेन के आगे मैंने फंक्शन का सिंबल दिया नहीं था, इसलिए एरर्स आ रहे थे। 2-3 हफ्ते होने के बाद हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है, तो सिली मिस्टेक्स होंगे ही। अभी मैं ये प्रोग्राम डिलीट करने वाली हूँ और फिर से टाइप करूंगी। ओके, तो डायरेक्टली मैंने अगर आपको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया तो समझ में नहीं आएगा। सो आई विल डिलीट ऑल दीज थिंग्स, रिटर्न सिर्फ रहने देते हैं। ओके, सो इंट मेन, मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम में 3 बेसिक ऑपरेशंस करने हैं। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो केयरफुली अटेंड करें लेक्चर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मुझे इस प्रोग्राम में क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है। ओके, दूसरा काम क्या करना है, उस फाइल में कुछ राइट करना है डेटा, और तीसरा काम क्या करना है, उसको रीड करना है। ओके, तो मुझे अभी फाइल क्रिएट करना है, तो कौन सा क्लास में यूज करूंगी? अभी आपने 3 क्लासेस देखे फाइल के लिए, ईच स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। तो अभी मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, या फिर फाइल में राइट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑफ स्ट्रीम यूज करूंगी। इसलिए मैंने अभी बोला था कि ये ठीक से सुनो। ऑफ स्ट्रीम इज माय क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज F1। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फंक्शंस करना है, क्रिएट कर परफॉर्म करने हैं। तो F1 इज माय ऑब्जेक्ट, उसको डॉट ऑपरेटर से मैं क्या करूंगी, ओपन फंक्शन लिखने वाली हूँ। अभी ओपन फंक्शन में मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, फाइल न्यू करते हैं और वहां पे टाइप करके सेव करते हैं, लेकिन वो फाइल प्रोग्राम के थ्रू नहीं होती है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस प्रोग्राम के थ्रू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। ओके, फाइल डॉट ओपन, तो मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है। तो मैंने ऐसा नाम देना है कि जो प्रीवियसली प्रेजेंट नहीं हो। ओके, सो दिस इज द XYZ से मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं की है, xyz.txt। तो इसके आगे हम इसमें और 3 पैरामीटर्स होते हैं। ये फाइल इनपुट मोड में है, आउटपुट मोड में है, या ट्रंक मोड में है। तो अभी मैं सिंपली वो पैरामीटर्स नहीं दे रही हूँ। ओके, मैंने अभी क्या किया है, F1 डॉट ओपन, इतना ही काम किया है। फाइल ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, फाइल क्लोज भी करना पड़ता है। ओके, F1 डॉट क्लोज। जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम में हम क्या करते हैं,
ग्राफिक्स क्लोज करते हैं, क्लोज ग्राफ, तो इसमें भी क्लोज होगा। अभी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी, कंपाइल, सी देयर आर नो एरर्स, नो वार्निंग, एरर 0, वार्निंग 0। अभी मुझे क्या करना है कि मेरा फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं है ये चेक करना है। ओके, सो दिस इज द कोड टू सिंपली create file, create file। अभी मैं क्या करूंगी, फाइल में जाऊंगी, जो अपना बेसिक फाइल है। Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। नाउ ओपन में मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने एक OOP-CGL फोल्डर क्रिएट किया है सभी प्रोग्राम्स के लिए। ये CG का फोल्डर है, OOP का फोल्डर है। उसने पूछा ही नहीं कि कौन से इसमें सेव करना है। ठीक है, this is a program I want to save it as, save as OOP फोल्डर में मैं सेव करने वाली हूँ, और उसका नाम अभी चेंज करूंगी, F3 देती हूँ, F3 save। This file is going to save in OOP folder of OOPL। Now I want to compile again। Okay, file open। अभी OOP फोल्डर में XYZ फाइल है या नहीं वो चेक करना है। So there is no XYZ file in this program, in this folder। ऑफस्ट्रीम दिया है F1 ओपन करके xyz.txt दिया है हम लोगों ने। अभी मैं इसको सिर्फ कंपाइल किया था। मैं अभी हमने क्या किया, ओपन फाइल ओपन करके ओपी फोल्डर में चेक किया XYZ फाइल क्रिएट हुआ है क्या नहीं। देयर इज X फाइल में, वो मैंने एग्जांपल करके मतलब देखने के लिए क्रिएट किया था। देयर इज नो XYZ फाइल। ओके, क्रिएट हुआ है क्या अभी हमारा फाइल? नहीं क्रिएट हुआ है। क्यों नहीं क्रिएट हुआ है? क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया है, इस प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल किया है। ओके, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ X फाइल दिख रहा होगा। आई विल क्लोज दिस वन नाउ, एग्जीक्यूट एंड रन दिस प्रोग्राम। तो रन करने के बाद यहाँ पे एक exe विंडो ओपन हो गया है, बट देर इज नो आउटपुट, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अभी मैं क्या करूंगी, फाइल में जाके, ओपन में जाके चेक करूंगी कि यहाँ पे XYZ फाइल है या नहीं। इज देयर XYZ फाइल नाउ? ओके, XYZ फाइल अभी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? Yes, ma'am. मतलब हमारा फाइल क्रिएशन टास्क कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी XYZ फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसमें कंटेंट क्या है? 0 किलोबाइट। इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू इस फाइल में मुझे कंटेंट चाहिए। ओके, सिंपली भी ये फाइल ओपन कर सकती हूँ। ये तो यहाँ पे ऐसे TXT हो गया है, लेकिन नोटपैड में वो ओपन हो जाएगा, TXT फाइल है। तो 0 किलोबाइट उसमें कंटेंट था। अभी मुझे उसमें क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है। क्या करना है? कंटेंट ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट है मेरा F1, उसमें मैं कंटेंट लिखने वाली हूँ, हेलो।
ये कंटेंट मैंने उसमें ऐड किया है उस फाइल में। पहले मैंने XYZ फाइल क्रिएट किया और रन करने के बाद आपको वहां पे फाइल क्रिएट जो है वो दिखेगा। नाउ कंपाइल देन रन। रन करने के बाद भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ओके, फाइल, अभी फाइल में जाते हैं, ओपन में जाएंगे और वहां पे XYZ फाइल जो है, पहले इसका कंटेंट क्या था, 0 KB था। इस फाइल का कंटेंट क्या था, 0 KB था। ओके, अभी आपको यहाँ पे 1 KB स्पेस उसको मिला है, मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ है कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा ऑपरेशन हो गया। दिस इज द राइट ऑपरेशन। मैंने क्या किया है, प्रोग्राम के थ्रू फाइल में राइट किया है। तो मैं जब अगर ये मेरा OPL फोल्डर है, इसमें OP है, इसमें XYZ फाइल है, दिस इज XYZ फाइल। तो इसमें हेलो आपको राइट हो गया है, फाइल भी क्रिएट हुआ, राइट भी हुआ। ओके, बोथ ऑपरेशंस सक्सेसफुली डन। So create file and this is write in file। लेकिन मुझे क्या करना है, रीड करना है अभी। ओके, क्रिएट हो गया, राइट हो गया, अभी रीड करना है। तो रीड करने के लिए मतलब एग्जीक्यूट और रन। यहाँ पे आपको हेलो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उस फाइल का डेटा मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन पे चाहिए। इज देयर एनी डेटा नाउ ऑन द स्क्रीन? कुछ भी नहीं है अभी। इसको मैं क्लोज करती हूँ। सो स्ट्रिंग टेक्स्ट वेरिएबल ले रही हूँ मैं, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, नाउ आई वांट टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। XYZ फाइल में, फाइल का डेटा मुझे रीड करना है। तो टेल मी which class I have to use, which file class I have to use here। ऑपस्ट्रीम जो है वो क्रिएट और राइट करने के लिए होता है, अभी मुझे रीड करना है। तो IF स्ट्रीम, ये याद रखो, IF स्ट्रीम। IF स्ट्रीम से मैं क्या कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ फाइल। ओके, तो IF स्ट्रीम क्लास लिया है उसके लिए, और रीड F ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो रीड करना है, लेकिन कहाँ से रीड करना है, वेयर टू गिव द फाइल नेम। तो मेरा फाइल नेम क्या है, XYZ डॉट txt, XYZ डॉट txt। इफ स्ट्रीम रीड फाइल देन फाइल नेम। लेकिन मुझे उसका, उस फाइल का डेटा कब तक रीड करना है, जब तक उसका सभी लाइंस रीड नहीं होता तब तक। तो उसके लिए कंडीशन देना पड़ेगा, व्हाइल गेट लाइन फंक्शन। और गेट लाइन फंक्शन में हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, रीड फाइल मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा फाइल का डेटा है वो ऑब्जेक्ट में चला जा रहा है। ओके, और वो मुझे डिस्प्ले करना है एक वेरिएबल में, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट वेरिएबल लिया है। ओके, तो ये पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। और अभी क्या डिस्प्ले होने वाला है, क्या डिस्प्ले करना है मुझे, whatever the content of XYZ file that is stored in text variable। हमने क्या किया है, जो भी रीड एफ जो ऑब्जेक्ट का डेटा है वो टेक्स्ट में ट्रांसफर किया है। ओके, और उसके पूरे लाइंस, उस वो पूरा कंटेंट हम शो करने जा रहे हैं। सो सी आउट टेक्स्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते हैं एंटर नंबर
फर्स्ट, तो सी इन करेंगे N1 और मुझे डिस्प्ले करना है, सो एंटर नंबर इज, तो मैं क्या करूंगी सी आउट N1, तो सी आउट टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रीड डेटा फ्रॉम फाइल। तो अभी क्लोज करना पड़ेगा। क्या क्लोज करना पड़ेगा? जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे हमने F1 ऑब्जेक्ट लिया था क्रिएट करने के लिए, उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया है F1 डॉट क्लोज। तो मैं अभी क्या करूंगी, रीड ऑब्जेक्ट लिया है, रीड F ऑब्जेक्ट लिया है, उसको क्लोज करना है। सो रीड F डॉट क्लोज। तो इससे एरर्स ज्यादा नहीं आएंगे प्रोग्राम में, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। सो compile this program, no error, no warning. Okay, now execute this program। अभी मैं रन करूंगी। see here, पहले इस विंडो पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हेलो आपको डिस्प्ले हो रहा है अभी। थैंक यू। तो अभी क्या हो गया है कि आपका तीनों ऑपरेशंस इस प्रोग्राम के थ्रू हमने रन किया है। क्रिएट फाइल किया है, उसमें कुछ डेटा प्लेस कर दिया है और उसको रीड भी किया है, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। तो अभी समझ में आ गया कि आपको ये थ्योरी में मैं इतना क्यों बोल रही थी एफस्ट्रीम ऑफस्ट्रीम एफस्ट्रीम एफस्ट्रीम ऐसे। तो ये यहाँ पे यूज होता है ऑफ स्ट्रीम, देन हमने यहाँ पे ईच स्ट्रीम यूज किया है। तो ये सेपरेट फंक्शनिंग इनका डिस्प्ले करने के लिए दोनों फंक्शंस लिए हैं, ऑफ स्ट्रीम एंड ईच स्ट्रीम। लेकिन इसके बदले में सिर्फ एफ स्ट्रीम भी लिख सकती हूँ, ओनली एफ स्ट्रीम। तो वो क्या करेगा, बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ओके गाइस, आप क्या करो, बस इतना ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखो, मतलब फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट ये करने के लिए। और इस टॉपिक का मैं सिर्फ 3 प्रोग्राम्स लेने वाली हूँ। अभी इसमें हमने क्लास यूज नहीं किया इस प्रोग्राम में, तो क्लास यूज करके एक प्रोग्राम करने का है। उस प्रोग्राम में मैं क्या करने वाली हूँ कि 3 रिकॉर्ड्स राइट करने वाली हूँ। ओके, रोल नंबर एंड नेम 1 2 3 ऐसे 3 रोल नंबर्स ऐड करने वाली हूँ, उसको राइट करना है उस एक पर्टिकुलर फाइल में। और बाद में तीसरा प्रोग्राम होगा उसको सर्च करना। अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो फाइल में से मैं कैसे उसको रीड करूंगी, कैसे सर्च करूंगी? मुझे रोल नंबर 2 ही सिर्फ सर्च करना है। तो रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, राइट डेटा इनटू द फाइल एंड सर्च डेटा फ्रॉम द फाइल। ऐसे 3 प्रोग्राम करने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू गाइस। और यहाँ पे एफ स्ट्रीम लिखना एक जरूरी है इस प्रोग्राम में। टुडेज अटेंडेंस कोड इज, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, इसलिए अभी और कुछ नहीं लेंगे। टुडेज अटेंडेंस कोड इज 5 फॉर दिस प्रैक्टिकल। ओके गाइस, थैंक यू। और टेम्पलेट का जो असाइनमेंट दिया है उसके लिए आपके पास नोट्स है क्या? नोट्स अपलोड किए होंगे क्या, है क्या मैंने? नहीं है तो बोल दो, मैं मतलब मैसेज कर दो, मैं टेम्पलेट के नोट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस।